Welcome students in biology class. Today we start the new chapter, that is the principle of inheritance and variation. So why we choose this topic? Through this topic of inheritance, we know about them. How can the gene or traits pass from one generation to next? Means how can the parental character, that is transfer from parent to the offspring? Okay. And second topic, that is the variation. This is the very important for the adaptation of organisms. जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं, विभिन्नताएं जो से करते हैं, जैसे एक ही माता पिता के दो संतान हो, उसमें भी वेरिएशन शो करता है. ठीक है, वी डिस्कस लेटर अबाउट देम. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड character from parents to their offspring. Okay, this is the transmission of genetically based character. genetically based जो character है वो transfer होता है कहाँ से? from parent to their offspring. this is known as the heredity. और दूसरा जो term है inheritance. what is the inheritance? Inheritance is the process by which characters or traits pass from one generation to next. ठीक है, तो what is the inheritance? Inheritance is a process by which character or traits that is transmitted from one generation to next generation. Clear? Okay. So here is discuss about the some basic features of heredity. Heredity क्या है? क्लियर हो गया? Heredity is the transmission of genetic character from parent to the offspring. It deals with the phenomenon of like begets like, that is member of each species breed true to their types. Okay, we discuss in detail in next video. Today we describe only the some process of Mendelian. Why that is Mendel that choose the pea plants and what is the importance, significance, we discuss today only. Okay. So first thing that is here is given, the topic is rediscovery of Mendel's work. So normally after the death of the Mendel died in 1884. Okay, long before his work came to the recognized. Means इनका जो वर्क किए थे इसको पब्लिश होने के लिए भेजे थे, लेकिन उनको पब्लिश होने से पहले ही ये डाइड कर गए 1884 में. एंड इट वाज इन 1900 दैट 3 वर्कर्स independently rediscovered the principle of heredity already worked out by the Mendels. ठीक, इन 19th सेंचुरी में 3 वर्कर जो डिफरेंट कंट्री के थे वो भी पी प्लांट पर ही वो डिस्कवर किए, और सेम प्रिंसिपल दैट इज ऑब्टेन, वही प्रिंसिपल ऑब्टेन की जो मेंडल ने दिए थे. दे आर, ये तीनों कौन कौन से थे? पहला है दे आर द ह्यूगो डिब्रीज ऑफ हॉलैंड. ह्यूगो डिब्रीज जो थे हॉलैंड के. कॉल कोरेंस ऑफ जर्मनी. कॉल कोरेंस जो साइंटिस्ट थे कहाँ के थे? जर्मनी. एंड एरिक वोन टेसेरमॉर्क सेनेज ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट सेम प्रिंसिपल को दिए जो मेंडल ने पहले दे चुके थे. ओके, कोरेंस रेज दैट status of two Mendel's generalizations
to the level of law of heredity, law of segregation and law of independent assortment. ये डिस्कस किया, I can describe that through the coherence. And Hugo de Vries that is also found out the paper of Mendel's and got it the published in Flora in 1901. Okay. तो ये 3 साइंटिस्ट है जो इनके प्रिंसिपल को, मतलब जो प्रिंसिपल दिए थे मेंडल को, वही प्रिंसिपल दैट इज ऑब्टेन देम, तो इसीलिए इसको कहा गया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स. अब एक प्रोसेस आता है वाई मेंडल दैट इज सक्सेस हिज एक्सपेरिमेंट. क्या रीजन था कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुए? So there are different reasons. Some main reason we discuss here. First one, Mendel selected only pure breeding varieties of pea for his experiment. Normally you know about them. जो पी प्लांट होते हैं, पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइबम. मेंडल ने पाइसम सटाइबम पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, तो मेंडल ने प्योर वैरायटी ऑफ पी प्लांट को ऑप्टेन किया था. यू नो अबाउट देम. इन केस ऑफ पी प्लांट ओनली सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स. पता है क्यों होता है? यदि पता है तो यू राइट इन कमेंट बॉक्स. ओके, क्यों होता है? क्योंकि इसका जो करोला का अरेंजमेंट होता है उसका वैक्जिलम टाइप होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कवर्ड थ्रू द कोरोला, उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. तो इसके थ्रू ओनली दैट इज ऑप्टेन द प्योर वैरायटी ऑफ स्पीसीज. सेकेंड, मेंडल took only those traits for his studies which did not show linkage, interaction or incomplete dominance. मेंडल ने केवल वही करेक्टर चूज किया जो नेक्स्ट जनरेशन में शो कर रहा था. ठीक है, इन्होंने उस करेक्टर को नहीं लिया जो लिंकेज कर रहा हो, मतलब इंटरेक्ट हो जा रहा हो, कॉम्बिनेशन शो करे, और इनकम्प्लीट हो जाए, मीन्स दे कैन नॉट शो इन द नेक्स्ट जनरेशन. उस तरह के करेक्टर को इन्होंने नहीं लिया था. क्लियर? Third point, characters chosen by Mendel has a distinctive contrasting traits. इन्होंने जो भी करेक्टर लिया था कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, मतलब एक के अपोजिट लिए थे. जैसे प्लांट की हाइट लिए तो टॉल एंड डॉर्फ, टॉल लंबा और डॉर्फ छोटे के लिए लिए. ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे जिससे उनको इजिली पता चल गया ऑन द बेसिस ऑफ फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स. क्लियर? Mendel's to one or two characters at one time for his breeding experiment. मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे केवल वंस टाइम में एक या दो कैरेक्टर ही लेते थे. और यू नो अबाउट देम, जो लाइफ स्पान होता है पी प्लांट का वेरी शॉर्ट होता है, मतलब 1 ईयर में दे आर 3 to 4 टाइम ग्रोथ कराते थे प्लांट को, और केवल वही दो कैरेक्टर को या ट्रेट्स को ऑब्जर्व करते थे. क्लियर? मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर फॉर 3 or more जनरेशन. ठीक है, एक ट्रेड्स के कैरेक्टर को 3 या 4 जनरेशन तक को कंटिन्यूस को ऑब्जर्व करते थे. क्लियर? मेंडल एक्सपेरिमेंट प्लांट पी इज आइडियल फॉर कंट्रोल ब्रीडिंग. इसमें इजिली कंट्रोल ब्रीडिंग कराया जा सकता है. इट इज क्रॉस ब्रीड मैनुअली वाइल नॉर्मली इट द अंडरगोज सेल्फ ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग इसमें हो नहीं सकता, सेल्फ ब्रीडिंग होता है. ठीक है, रीजन क्या है वी आल्सो डिस्कस अबव एंड यू राइट आल्सो इन कमेंट बॉक्स अबाउट देम व्हाई दैट इज द सेल्फ ब्रीडिंग अकर्स इनसाइड द पी प्लांट्स. मेंडल यूज स्टैटिकल मेथड्स एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग हिज रिजल्ट्स. मेंडल को मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान था. ठीक है, इन्होंने केवल 2 प्लांट को लेकर के हाइब्रिड कराया, उससे जो 4 प्लांट ऑप्टेन हुए, 3 आपके डोमिनेंट 1 रिसेसिव. ठीक है, इसको इन्होंने मल्टीप्लाई करके 1000 10,000 में शो कर दिया. मतलब कि एक बहुत छोटे से या कम प्लांट पर किया गया एक्सपेरिमेंट, उसको मल्टीप्लाई करके इन्होंने शो किया, जिससे ज़्यादा आंकड़ा से क्या होता है सबको यकीन हो जाए. दैट इज क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट्स। इन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया? तो सम में देयर इज बेसिक फीचर ऑन द बेसिस ऑफ देम, दैट इज ओनली चूज द पी प्लांट। जो मेंडल्स selected Gordon P means Physacetabum, they have only 24 chromosomes. Diploid number इसमें कितना होता है? 24 chromosomes for his experiment. चूज क्यों किए? फर्स्ट वन, जो प्योर वैरायटी ऑफ पी वर अवेलेबल, ठीक है। पी प्लांट जो होते हैं हमेशा प्योर वैरायटी स्पीसीज उसकी मिलेगी क्योंकि इसमें सेल्फ ब्रीडिंग होता है। क्लियर? सेकेंड, द फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ इज सच एज टू अलाउ कंट्रोल ब्रीडिंग। इसका जो फ्लावर स्ट्रक्चर होता है इसमें कंट्रोल ब्रीडिंग कराया जा सकता है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड वन, पेपर फ्लावर नॉर्मली रिमेन्स क्लोज एंड अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन। अभी बता रहे थे कि जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज कवर्ड विथ देयर कोरोला या पेटल्स को कवर्ड होते हैं। ठीक है, वैक्यूलम टाइप अरेंजमेंट इसमें होता है और इसके कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। और इसका हमेशा जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो हमेशा प्योर वैरायटी प्लांट मिलेंगे। Next one, it is an the annual plant with short life span and give result within 3 months. जो लाइफ स्पान होती है पी प्लांट की ओनली 3 मंथ होती है। तो इस तरह एक साल में उसको 3 to 4 टाइम उसको जर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर? और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस पर प्लांट। और नॉर्मली यू नो अबाउट देम, जो पी प्लांट होता है उसमें सीड का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। 1 पॉट दे कंटेन द 10 to 15 नंबर ऑफ सीड्स। और एक प्लांट में कई आपके पॉट बनते हैं। फ्रूट जो होता है प्लांट का उसको क्या बोलते हैं? हम पॉट बोलते हैं। ठीक है, पी प्लांट के फ्रूट को हम पॉट बोलते हैं। तो पॉट में जो होता है दे कंटेन द 10 to 15 नंबर ऑफ सीड्स। और इस तरह यदि 10 to 15 भी बन जाए तो उसके अकॉर्डिंग एक ही प्लांट में बहुत ज़्यादा नंबर आपके सीड के मिलेंगे। क्लियर? The plant is grown easily and does not require after care except at the time of pollination. ठीक है, प्लांट नॉर्मली ग्रोथ करता है। इसको बाहर से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं, यूरिया देने की आवश्यकता नहीं, केयर करने की भी रिक्वायर्ड नहीं है इसको। क्यों बाहर से यूरिया नहीं देना है? बिकॉज दैट इज द रूट ऑफ पी प्लांट, दे कंटेन द रूट नोड्यूल्स विच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट। प्लांट जो होता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। तो इसमें जो रूट नोड्यूल्स होता है दे कंटेन द राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेकर के उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है जिससे प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और दिस नाइट्रोजन इज हेल्पफुल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये दोनों उसको पूर्ण करता है। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट। इसलिए इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस अबाउट द मेंडल्स प्रिंसिपल, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में वी डिस्कस अबाउट देम। ओके, सो यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू feel the video is good, so subscribe them, like and share it. Thank you.